ਦਰਸ਼ਕੋ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਚੂਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਮਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਬ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ IV ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੋਡਾ ਬਦਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੇਲਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੌਂਕੜੀ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਚੌਂਕੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਦਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਰ ਬਦਰ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਆਈਏ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਟਰੋਮਾ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੋਬੋਟਿਕ ਨੇ ਆ ਕਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਰੋਬੋਟਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੈਪਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਬੋਟਿਕ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਰੋਬੋਟਿਕ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੋਬੋਟਿਕ ਹੈ, ਇਨਵੇਜ਼ਿਵ ਹੈ, ਸੈਮੀ ਇਨਵੇਜ਼ਿਵ ਹੈ, ਨॉन ਇਨਵੇਜ਼ਿਵ ਹੈ। ਰੋਬੋਟਿਕ ਦਾ ਮੇਨ ਐਸੈਂਸ ਹੈ ਐਕੂਰੇਸੀ, ਔਰ ਐਕੂਰੇਸੀ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੋਟ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਸਟ ਰੋਬੋਟਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਐਸੀ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਹਾਇਰਿੰਗ ਪਲੱਸ CT ਸਕੈਨ ਦੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਲੱਤ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚੀਰਾ ਘਟ ਗਿਆ, 10-12 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਰੀ ਪਾਈਪ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਨਲੀਆਂ, ਖੂਨ ਦੀ ਨਲੀਆਂ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ, ਟਾਂਕਿਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ICU ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਕਰ ਬਿਨਾਂ ਛੜੀ ਟੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਪੇਨਲੈਸ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਰੋਬੋ 3D ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਗੀ। ਰੋਬੋਟਿਕ ਪਲੱਸ 3D CT ਸਕੈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈਗਾ ਜੋ ਨॉन ਇਨਵੇਜ਼ਿਵ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੁਹਾਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੰਬਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੋਬੋਟਿਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਲਟਰਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MBS ਆਫ ਹਸਪੀਟਲ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰਸ, ਇੱਥੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਕਲੋਕ ਅਨਸੀਜ਼ੀਆ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਡੇ ਚੁੱਲੇ 60 ਸਾਲ 55 ਸਾਲ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਦਾ ਇੱਥੇ, ਨਾਲ ਹਰ ਨਿਊਰੋ ਦਾ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ? ਦੇਖੋ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜਰ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੰਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਜਰੀਆਂ, ਪੇਚੀਦਾ ਸਰਜਰੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਡੀਅਕ, ਨਿਊਰੋ, ਯੂਰੋ, ਔਨਕੋ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੜਾ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ IV ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 6 ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ 20 ਤੋਂ 25 ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚੂਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੂਲੇ ਆ ਉਹ ਲੇਟ ਏਜ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ
ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਵੀਂ ਦੇਤੀ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਦੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਨਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਕੂਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਦ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬੈੱਡ ਰਿਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਨਲੈਸ ਐਂਡ ਅੰਟਿਲ ਉਹਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਐਸੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬੈਕਅਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਨਲੈਸ ਐਂਡ ਅੰਟਿਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਸਰਜਰੀ ਕੰਟਰਾਇੰਡੀਕੇਟਡ ਹੋਏ। ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਚੂਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟ ਏਜ ਦੇ 80 ਚ 85 ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਫॉर ਦੀ ਸਰਜਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੋਡੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸ ਆ ਖਾਲੀ ਅੱਧਾ ਕੱਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਊ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਜहाँ तक ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੁਰਾ ਔਰ ਅੱਛਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੈਡ ਐਂਡ ਟੇਲ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ 3 W ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਪਹਿਲਾ W ਆਉਂਦਾ ਵੇਅਰ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ W ਆਉਂਦਾ ਹੂਮ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ W ਆਉਂਦਾ ਵੈਨ, ਇਜ਼ ਇਟ ਦੀ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਲਈਏ ਕਿ ਨਾ। ਜਦ ਆਪਾਂ 3 W ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੋਜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇੰਟਰੈਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੀਏ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਂਗਲਸ ਦੀ ਇੰਟਰੈਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੋਗੋਂ ਕਿ ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਵਹੀ ਵਿਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਲ ਦਾਇਿਤਵ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਇੱਕ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੱਲ ਕਿੰਨਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਮੰਗੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਰਚੁਅਲੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੀਜਾ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਜੋ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹਦੇ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਛਮਤਾ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਓ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਔਰ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ 110% ਇਹ ਸਰਜਰੀਆਂ 100% ਕਾਰਗਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੇਰੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ, ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੋ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ OT ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੋਰਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਉਹ ਟੋਟਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦੇ, ਵੀ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਦੇ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਖਰਾਬ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਗੋਡਾ ਬਦਲਾਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਦਲਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਗੋਡਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਟੋਟਕੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 4th ਸਟੇਜ ਆ ਗੋਡੇ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਗੋਡਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗੋਡਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਗੋਡੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਖਰਾਬ ਗੋਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨੇ ਅਜੇ ਸਿੱਧੇ ਨੇ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਵਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਵਿੰਗੇ ਗੋਡਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਜਾ ਵਿੰਗਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਜਾਂ ਸਕੈਚ ਵਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੋਡਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ 2 ਟਾਇਰ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਟਾਇਰ ਵੀ ਬਰਸਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੂਸਰਾ ਗੋਡਾ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਗੋਡੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਗੋਡੇ ਕਰਾ ਕੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ weight ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਗੋਡੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ, ਕੂਲਾ, ਗਿੱਟਾ, ਪੰਜਾ ਸਭ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਧੀਆ ਜੀਏ। ਯੂ ਆਰ ਐਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਯੂ ਹੈਵ ਲੌਂਗ ਡਾਟਾਸ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੀਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕਰ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਨਿਊ ਰੂਬੀ ਹਸਪੀਟਲ ਐਵਰੀ ਵੈਡਨਸਡੇ ਮੈਂ 12 ਤੋਂ 2 ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ IB ਹਸਪੀਟਲ 7 ਡੇਜ਼ ਮੰਡੇ ਟੂ ਸੈਟਰਡੇ ਹੁੰਦਾ। ਐਵਰੀ ਵੈਡਨਸਡੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲੰਧਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏ ਤੇ 12 ਤੋਂ 2 ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨਿਊ ਰੂਬੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਜਲੰਧਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं IB हॉस्पिटल, एक ऐसा हॉस्पिटल जिन्होंने सारे पंजाब में जो है अपनी चेन बसाई हुई है और 7 के करीब जो है इनके हॉस्पिटल्स ऑल ओवर पंजाब चल रहे हैं। और आज हम आए हैं मोहाली के सेंटर में और बात कर रहे हैं डॉक्टर राका कौशल जी के साथ, एक ऐसा नाम जिन्होंने लंबे समय से लोगों को किडनी की बीमारी से निजात दिलाई है। और इस हॉस्पिटल में, क्योंकि ये हॉस्पिटल हमेशा क्रिएटिव है, नई नई चीज़ें करते रहते हैं, और अभी इन्होंने जैसी डायलिसिस की एक नए यूनिट ऐसे लगाए हैं जिसमें पेशेंट को कंफर्टेबल जोन और भी ज़्यादा है। बात करेंगे डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार जी। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं इनके ज़रिए से डायलिसिस के बारे में जो बातें हैं लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं। जो कुछ मिथ्स हैं उनको हम फॉल्स प्रूव करना चाहते हैं, और हम बताना चाहेंगे कि डायलिसिस में लेटेस्ट क्या टेक्नोलॉजी है जो हम अब अपने पेशेंट्स को ऑफ़र कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि जो सिनेरियो है जिसमें शुगर का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, BP बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और डायलिसिस जो पहले लोग डरते ज़्यादा थे कि डायलिसिस हो जाएगा तो हमारा बंदा जो 5-7 साल ही जिएगा, और आज भी उनके माइंड में वही मिथ है। और उस मिथ के कारण वो लोग क्या करते हैं कि वाकई 5-7 साल जीने वाला सिस्टम बना लेते हैं, क्योंकि जब तक किडनी फेल नहीं हो जाती तब तक वो टोट के हमने ये किया है, हमने वो ले लिया, हमने गूगल से वो देख लिया। क्या कहना चाहेंगे कि जब डायलिसिस आपको रिक्वायर्ड हो गया, डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब कर दिया कि आपको डायलिसिस की ज़रूरत है, चलो आप एक आधे डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, लेकिन आपको बाद में इन टोटकों में नहीं पड़ना, बल्कि डायलिसिस के ऊपर जाना है। जी देखिए, जब किसी की किडनी ख़राब हो जाती है तो एक तो सबसे पहले तो ये है कि हम जो नॉर्मल डॉक्टर है, जो किडनी के डॉक्टर है, नेफ्रोलॉजिस्ट, उनके पास पेशेंट पहुंचता ही बहुत लेट है। क्योंकि जैसे कि आपने बताया, वो एक तो एक्सेप्टेंस नहीं होती कि हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया, कैसे मेरी किडनी ख़राब हो गई। तो वो जो है सारे कुछ इधर उधर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन, टोटके सारे करने के बाद हमारे पास आते हैं। तो एक तो वो अगर थोड़ी बहुत किडनी रिपेयर की स्टेज में होती है तो वो भी ख़त्म हो जाती है। फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता। जब किडनी 90-95% डैमेज हो गई है तो हमें डायलिसिस ही करना पड़ता है पेशेंट का, बिकॉज उस स्टेज में अगर किसी की किडनी मोर देन 90% डैमेज हो गई है तो उसको लाइफ सेविंग के लिए डायलिसिस पे तो आना ही पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हम सजेस्ट करते हैं तो डायलिसिस, देखो अगर हम एवरेज
कंपेयर करें कि एक यूएस जैसे कंट्री में जो एवरेज डायलिसिस पेशेंट की लाइफ स्पैन है और हमारे कंट्री में वो आधा है ऑलमोस्ट, और कुछ जगह तो थोड़े ग्रेड बी सिटीज़ में तो वो ऑलमोस्ट 1/3 ही रह जाता है। वो क्यों? क्योंकि यूएस में किसी पेशेंट का जब 90% किडनी फेल हो जाता है और उसको डायलिसिस पे डाला जाता है तो वो 3 टाइम्स अ वीक डायलिसिस पे डाला जाता है। हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होता है, जिससे कि ऑलमोस्ट जो डेली वेस्ट प्रोडक्ट्स आपके बन रहे हैं वो ऑल्टरनेट डे निकलते रहेंगे, तो बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स की मात्रा कम रहेगी, जिससे कि बॉडी जल्दी चलेगी। आपकी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो हार्ट को, ब्रेन को, मसल्स को कम डैमेज करेंगे। हमारे कंट्री में क्या प्रॉब्लम है? पहली बात तो हमारे पास आते ही बहुत ज़्यादा लेट हैं, और उसके बाद जब आते भी हैं और हम सजेस्ट करते हैं कि हफ्ते में 3 डायलिसिस होना चाहिए, तो मुझे लगता है लेस देन 25% पेशेंट्स हैं जो 3 डायलिसिस कराते हैं। 3 भी क्या छोड़िए, आप दो भी छोड़िए, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हफ्ते में 1 या 10 दिन में 1 डायलिसिस कराते हैं कि जब तक हमें बहुत सिम्टम्स नहीं होते हम तब तक डायलिसिस नहीं करवाएंगे। विद द रिजल्ट क्या है कि हालत बिगड़ती जाती है। उससे प्रॉब्लम ये होती है कि डायलिसिस का नाम बदनाम होता है कि हमारा सो एंड सो रिश्तेदार था, वो डायलिसिस पे आया और उसके बाद उसकी हालत बिगड़ती गई और वो एक्सपायर कर गया 1 साल में। अब दिस इज़ द नोशन विच इज़ स्प्रेड, ये सबको बताया जाता है, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि वो XYZ जो रिलेटिव था वो पहले तो टाइम से डॉक्टर के पास नहीं पहुंचा। दूसरा, डॉक्टर ने कहा हफ्ते में 3 डायलिसिस करवाइए, उसने हफ्ते में कराया 1 डायलिसिस। तो जब डॉक्टर की एडवाइस ही नहीं मानी तो डायलिसिस का नाम बदनाम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। डायलिसिस एक ऐसी चीज़ है जिससे करोड़ों लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी लाइफ जी रहे हैं, एंड दे आर अलाइव बिकॉज ऑफ डायलिसिस ओनली। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि 20-20 साल लोग, 25-25 साल डायलिसिस के साथ इंडिया में भी जी रहे हैं, वो लोग जिनको पता है कि मैं डायलिसिस पे हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैंने अपना लाइफस्टाइल, अपना खान पान, ये नहीं कि डायलिसिस करा लिया और मैंने, जैसे लोग कहते हैं कि शुगर है मेरे को, मैंने गोली खा ली और उसके साथ ही मीठा खा लिया, वो सोचते हैं कि मैंने गोली चल बढ़ा दूंगा मैं। क्या कहना चाहेंगे कि हर चीज़ को, ये नहीं है कि आपको डायलिसिस ने तो आपको एक बार बचा दिया है, लेकिन ये नहीं है कि आपको कोई भगवान का कोई ऐसा मंत्र मिल गया है। जी बिल्कुल सही बात है। देखिए, किडनी होती है, उनका फेल होना अपने में एक मेजर चीज़ है, एंड किडनी फेलियर का जो मैनेजमेंट है वो मल्टी फैक्टोरियल है। मल्टी फैक्टोरियल कहने का मतलब है कि उसमें आपको, इट इज़ नॉट ओनली डायलिसिस, इट इज़ अबाउट कि आप डाइट क्या ले रहे हैं, आप लाइफस्टाइल कैसा जी रहे हैं, आपके आसपास जो सोशल फैक्टर्स हैं उनको आप ऐसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये मल्टी फैक्टोरियल है। सिर्फ हमारा डायलिसिस, मैं पेशेंट्स को यही कहती हूँ कि 50% रोल हमारा है कि हम आपको कैसे ट्रीटमेंट लिख के देते हैं और कैसा आपका डायलिसिस करते हैं, बट बाकी का 50% रोल आपका है। आप कितनी रेगुलरली करवाते हो, आप जो हमने स्पेसिफिक डाइट्स बोली हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मेजर चीज़ है, आपकी किडनी फेल हो गई है तो डाइट, तो स्पेसिफिक जो परहेज़ और डाइट हम बताते हैं, फ्लूइड का इंटेक, पेशेंट्स वही लंबा चलते हैं जो उसको एग्जैक्टली समझते हैं, उसकी सीरियसनेस को, और उसको फॉलो करते हैं। डॉक्टर साहब, इंडिया के लिए भी ये खुशी की खबर है कि इंडिया में भी अब ट्रांसप्लांट होने लगे हैं, और पंजाब में भी खासकर, और ये IB हॉस्पिटल में भी, जिसमें डॉक्टर साहब जो बहुत ही रिनोड किडनी ट्रांसप्लांट वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे कि अगर किडनी आपकी दोनों भी प्रॉब्लम आ गई है, ख़राब हो गई हैं, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी एक नॉर्मल लाइफ लोग जी रहे हैं। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको प्रोटीन पेशाब में आना शुरू होता है, और उसके साथ ही वो लोग भी, बच्चों की भी किडनी है अब आजकल ख़राब होने शुरू हो गई हैं, दोनों किडनी। तब पता चलता है कि जब ख़राब हुई होती हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये भी एक बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है, ना तो उस बंदे को खतरा है जिसने किडनी देनी है, ना ही लेने वाले को खतरा है, प्रोवाइडेड कि आप समय सिर, कि जब तक वो चीज़ का रहे, ये नहीं कि आप उसको बिल्कुल ही खा कर स्टेरॉइड्स और ले लेकर देसी नुस्खे तब तक बिल्कुल ख़त्म हो जाओ। जी बिल्कुल। तो ट्रांसप्लांट एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, एंड जो बिटवीन डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट, अगर किसी को पास डोनर है और वो ट्रांसप्लांट करवा सकता है, डेफिनेटली ट्रांसप्लांट इज़ अ बेटर ऑप्शन। लेकिन ट्रांसप्लांट में भी मैं कहना चाहूँगी कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रिकॉशन ज़िंदगी भर लेने पड़ेंगे और दवाई ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। लेकिन जो पेशेंट्स ये समझते हैं, अपने आसपास क्लेanलीनेस रखते हैं, रेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं, और जो भी प्रिकॉशंस हमने कही होती हैं वो लेते हैं, तो ट्रांसप्लांट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। एंड इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। यू गो बैक टू योर फैमिली, आप अपना काम कर सकते हो, तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। डॉक्टर साहब, हम जब आपको पहली बार मिले थे
हम लोग किसी हॉस्पिटल में डायलिसिस करा रहे थे, मेरे ब्रदर इन लॉ को डायलिसिस चल रहा था। वहाँ पर लोग बैठे, हमने चौराहों पर बैठे ऐसे बातें करते नहीं देखा। वो कह रहे थे अरे भगवान का एक बच्ची है वहाँ पर, डॉक्टर राका कौशल, जो आपको बिल्कुल सही सलाह देगी। आप हमेशा अपने दिल से काम करते हैं, लोगों को एक सही सलाह देते हैं। आपका हमें समय देने के लिए, और आप जैसे डॉक्टर जिनकी इतनी लंबी लाइनें लगी रहती हैं पेशेंट की, हमें अपने साथ बात करने के लिए, हमारे पेशेंट्स को, हमारे देखने वाले दर्शकों को अवेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें बिफोर वी एंड मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अब हमारे पास एक लेटेस्ट फॉर्म ऑफ डायलिसिस आ गया है जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन HDF, ऑनलाइन हीमोडाइफिल्ट्रेशन। ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो बहुत गिने चुने हॉस्पिटल्स में ही अवेलेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें क्या होता है, दिस इज़ अ सुपीरियर फॉर्म ऑफ डायलिसिस। इसकी मशीन भी नॉर्मल मशीन से सुपीरियर होती है, महंगी होती है। और ये डायलिसिस जो है इसमें क्यों ये इतना अच्छा माना जाता है एंड वाई इट इज़ लेटेस्ट, बिकॉज डायलिसिस में जो है ना, जब हम फिल्टर करते हैं टॉक्सिन और वेस्ट प्रोडक्ट्स को, जो नॉर्मल डायलिसिस होता है वो स्मॉल टॉक्सिन्स जो होता है, जिसको हम स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट टॉक्सिन्स कहते हैं, उन्हीं को निकाल पाता है, मीडियम और लार्ज मॉलिक्यूल्स को नहीं निकाल पाता, जिससे कि कुछ प्रॉब्लम्स डायलिसिस के होने के बावजूद रह जाती हैं। कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी जो है वीकनेस नहीं जा रही है, या मेरे पैरों के में जो जलन हो रही है वो नहीं जा रही है, या मेरी मसल्स वीक होती जा रही हैं। तो इसके लिए वो क्यों होता है, क्योंकि वो मिडिल मॉलिक्यूल्स निकल नहीं पाए हैं। तो ये जो हीमोडाइफिल्ट्रेशन हम करते हैं ऑनलाइन, इसमें वो मिडिल मॉलिक्यूल्स भी हम निकाल देते हैं, जिससे एक तरह से टॉक्सिन्स का रिमूवल ज़्यादा कंप्लीट, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है। तो एक तो क्वालिटी ऑफ लाइफ लंबी चलती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाती है, एंड लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ लंबी हो जाती है। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्पेशली जो हार्ट पेशेंट्स हैं, तो किन पेशेंट्स को ये HDF करना चाहिए। फर्स्टली अगर कोई पेशेंट अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि इसकी कॉस्ट डायलिसिस से थोड़ी ज़्यादा है, तो जो भी अफोर्ड कर सकता है उसको हफ्ते में 3 बार ऑनलाइन हीमोडाइफिल्ट्रेशन इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डायलिसिस अवेलेबल इन द वर्ल्ड टुडे, जो हमारे पास है। सेकेंडली जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, ये डायलिसिस बड़ा स्टेबल डायलिसिस है। तो जो पेशेंट्स जिनका हार्ट वीक है, या पुरानी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, बाईपास हो चुका है, या हार्ट की फंक्शनिंग कुछ % कम है, उनके लिए ये डायलिसिस बहुत अच्छा है, क्योंकि हार्ट पे प्रेशर नॉर्मल डायलिसिस से भी बहुत कम डलता है। एंड थर्डली जो पेशेंट्स हैं वो आर नॉट डूइंग दैट वेल ऑन हीमोडायलिसिस, कि उनको लगता है डॉक्टर साहब कुछ कंप्लेंट्स मेरी रह जा रही हैं, वो पेशेंट्स ये डायलिसिस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा डायलिसिस है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो कई सालों से डायलिसिस चल रहा है उसके ऊपर एक इम्प्रूवमेंट है। एंड डेफिनेटली अगर आप करवा सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि ये डायलिसिस अल्ट्रा प्योर वाटर से ही हो सकता है। अल्ट्रा प्योर RO जो बहुत कम सेंटर्स में होता है, हमारे यहाँ पे हमारा ऑनलाइन RO है, बहुत ही अल्ट्रा प्योर वाटर जिससे हमारे को मिलता है, इसलिए हम ये डायलिसिस कर पा रहे हैं। दीज आर द लेटेस्ट मशीन्स वी हैव, जो अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगी। एंड आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि जो करवा सकता है उसको ऑनलाइन HDF करवाना ज़रूर चाहिए। थैंक यू डॉक्टर। जो मैं आपको लेटेस्ट मशीन के बारे में बता रही थी, ये 5008S है। ये ऑनलाइन हीमोडाइफिल्ट्रेशन की मशीन है, जो कि डायलिसिस की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। पेशेंट्स को बेटर क्वालिटी ऑफ डायलिसिस देती है, पेशेंट्स की लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ बेटर रहती है, और कॉम्प्लिकेशंस ऑन डायलिसिस इस मशीन में बहुत कम होते हैं। सो दिस इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मशीन जो हमारे पास है, जो हम अल्ट्रा प्योर वाटर से बेस्ट और लेटेस्ट डायलिसिस इससे पेशेंट्स को ऑफ़र करते हैं। हमारे पास अभी 4 मशीन्स की है इस यूनिट में अभी प्रोविज़न, लेकिन क्योंकि हमारा इसका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, पेशेंट्स आर फीलिंग गुड, सो वी आर गोइंग टू एक्सपैंड दिस इनटू अ बिग हीमोडाइफिल्ट्रेशन यूनिट नाउ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं IV हॉस्पिटल मोहाली और बात कर रहे हैं डॉक्टर अवनीत सगड़ जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से एज ए न्यूरो सर्जन अपनी सेवाएं दे रहे हैं IV हॉस्पिटल में और डायरेक्टर हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि वो चीज़ें जो किसी समय पर जब हो जाती थी तो घर वालों को ये लगने लग जाता था कि बस ये लास्ट स्टेजेस हैं, और अब एक तरह का मातम छा जाता था। जैसे हम बात कर लें ब्रेन ट्यूमर की बात कर लें, ब्रेन हेमरेज की बात कर लें, तो आज की साइंस और आप डॉक्टर्स ने एक ऐसा इमाम हासिल कर लिया है कि जिसके साथ वो पेशेंट्स जो
पहले जिनकी मोर्टेलिटी बहुत कम होती थी, जीने का रेट उनका बहुत कम रहता था, डेथ ज़्यादा हो जाती थी, और वो आज एक चेंज हो चुका है और उसमें जीने की आस जो बड़ी है। जी बिल्कुल, जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है तो आपने देखा है कि किसी टाइम पे इंटरनेट जो होता था एक मॉडेम से कनेक्ट होता था और फिर चलता था, और आज इंटरनेट आपके पास 5G हाथ में है। तो उसी तरह से मेडिकल फील्ड में भी उतनी ही तरक्की हुई है और न्यूरोसर्जरी फील्ड ने भी तरक्की किया है। न्यूरोसर्जरी में अगर हम कहें, जैसे कि अब जो बीमारियां हैं उनमें से एक ब्रेन ट्यूमर है और ब्रेन हेमरेज, ये जो दो मेन बीमारियां हैं बेसिकली न्यूरोसर्जरी में, तो उनमें भी बहुत सारी चेंजेस आई हैं उनकी ट्रीटमेंट के अंदर। पहले आपने बिल्कुल ठीक कहा, पहले जैसे कि न्यूरोसर्जरी में अगर कोई मरीज भर्ती हो जाता था तो ये लगता था कि पता नहीं घर भी वापस आएगा या ठीक ठाक वापस आएगा कि लकवे के साथ वापस आएगा। अब ऐसी चीज़ें नहीं हैं। बहुत सारी एडवांसमेंट्स हुई हैं। जो आजकल जो न्यूरोसर्जरी होने लगी है ट्यूमर की, वो हम माइक्रोस्कोप के अंडर करते हैं, जिसको हम माइक्रो न्यूरोसर्जरी कहते हैं, जिससे कि पोस्ट ऑपरेटिवली मरीज को कम से कम नुकसान होता है। जो पहले बचने की बचने की उम्मीद कम होती थी, आज वो पेशेंट्स जो हैं ऑपरेशन के कुछ घंटों बाद अपने रूटीन में भी आ जाते हैं, खाना पीने लगते हैं। तो माइक्रो न्यूरोसर्जरी के थ्रू हमने काफ़ी एडवांसमेंट्स करी हैं और जो है इसका ट्रीटमेंट जो है काफ़ी रिस्क फ्री बनाया है। सिमिलरली ब्रेन हेमरेज में भी आज से पहले क्या होता था, ब्रेन हेमरेज हो गया तो मरीज नहीं बचेगा। ठीक है, ब्रेन हेमरेज जब होता है या लकवा होता है तो उस समय जो डैमेज होना होता है वो तो होता ही है, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट के लिए अब हमारे पास जैसे कि ब्रेन में हेमरेज का कारण, एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, वो है ब्रेन में एन्यूरिज्म बन जाना, जो कि बेसिकली ब्रेन की नसों के ऊपर जो है फुलावट होती है गुब्बारे जैसी। तो पहले उसको सिर खोल के करना पड़ता था, लेकिन अब एंडोवेस्कुलर न्यूरोसर्जरी के द्वारा, जैसे हार्ट में आप बिना खोले स्टेंट डाल लेते हैं, उसी तरह से हम बिना सिर को खोले उसके अंदर कॉइल्स भर लेते हैं, वहाँ पे स्टेंट्स यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि जो है रिस्क टू द लाइफ और जो है मॉर्बिडिटी है वो बहुत कम हो गई है। ना सर, क्या कहना चाहेंगे कि अब जैसे आपने माइक्रोस्कोप की बात कही है कि हमारे पास रास्ता मिल जाता है, हम उतनी जगह कोई छेड़ते हैं। पहले तो वो बातें थी कि हमें पूरा, जैसे आपने बोला कि पूरा खोला और सारा का सारा, अब हम उसी जगह पर जहाँ पर हमें लगता होता है कि ये प्रॉब्लम यहीं पर है, वहीं पर हम जाते हैं। और वो सर्जरी कराने के बाद भी, क्योंकि पहले हम जब सर्जरी हो जाती थी तो वो भी अपने आप को डंकी मारते थे कि नहीं यार इसकी तो सर्जरी होगी, अब तो ये गया, मतलब थोड़ी देर जिएगा या इसको वो लाइफ स्टाइल नहीं है। लेकिन आज हमने देखा कि जो लोग ब्रेन की सर्जरी से करा कर वो फिर से एक नॉर्मल बंदे की तरह जीवन जी रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा जी। देखिए आजकल माइक्रो न्यूरो सर्जरी हो गई है, इसके अलावा और बहुत सारी हमारे पास मोडालिटीज़ हैं। अभी हमने एक 12 साल की बच्ची का ऑपरेशन किया है कुछ दिन पहले, जो कि कुल्लू से आई थी, और उसमें हमने जो है उसका बिना सिर खोले नाक के रास्ते ही उसका ट्यूमर पिट्यूटरी का निकाल दिया। और पेशेंट जो है विजन लॉस के साथ आया था, उसको दिखता कुछ नहीं था एक आंख से, और सर्जरी के विद इन 1 और 2 आवर्स उसको दोनों आंखों से बराबर 6 फुट की दूरी तक दिखने लगा। ये एडवांसमेंट्स तो है ही हैं माइक्रो न्यूरोसर्जरी के द्वारा, एंडोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा, ये हम वो है। उसके अलावा एक नई टेक्निक आई है जिसको हम न्यूरो नेविगेशन कहते हैं। न्यूरो नेविगेशन के द्वारा जो ब्रेन की डेप्थ में जो ट्यूमर्स होते हैं, हम सीधा एक छोटा सा छेद करके सीधा वहीं तक पहुंचते हैं और वहीं से भी बायोप्सी निकालने की जो है क्षमता रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्हीं कारणों की वजह से जो है जो रिस्क है और जो मॉर्बिडिटी जिसको हम कहते हैं नुकसान होता है ऑपरेशन के बाद, वो काफ़ी कम हो गया जी। सर क्या कहना चाहेंगे कि एक बड़ी इंस्टीट्यूशन लाइक IB हॉस्पिटल, यहाँ पर हम लोग अभी बैठे आपकी टॉक कर रहे हैं, ऐसे हॉस्पिटल जिनमें हर तरह की फैसिलिटी है, राउंड द क्लॉक एनेस्थीसिया वाले हैं, CT स्कैन है, MRI है, क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे सेंटर्स में उनको चूज़ ही बढ़िया सेंटर्स करने चाहिए? जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है उनको टोटकों में नहीं रहना चाहिए कि हमने ये कर दिया, हमने अफीम दे दी, हमने वो कर दिया। और वो जो प्रीशियस टाइम है इन चीज़ों के लिए, जब ये चीज़ें होती हैं तो वो प्रीशियस गोल्डन टाइम है जो उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए और जल्दी से जल्दी किसी बड़े हॉस्पिटल में पहुंचना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए स्ट्रोक जो बेसिकली एक लकवा होता है, 2 तरह का होता है, एक हेमोरेजिक स्ट्रोक जिसमें ब्लीडिंग होती है और एक जिसमें रुकावट आती है। तो पहले जो स्ट्रोक का ट्रीटमेंट होता था तो वो सिर्फ एक गोली होती थी एस्प्रिन, जो कि दे दी जाती थी खून पतला करने की, और रास्ता खुल गया तो मरीज की किस्मत नहीं खुला तो फिर इंजेक्शंस आए जिसको हम एल्टीप्लेस कहते हैं, खून पतला करने वाले।
लेकिन वो भी अराउंड 50-60% लोगों में ही कामयाब हो पाते थे। लेकिन एंडोवेस्कुलर न्यूरोसर्जरी के द्वारा अब हम सीधा, अगर मरीज टाइम पे पहुंचता है तो जो नस ब्लॉक है उसमें जाकर के अपने डिवाइसेस के द्वारा डायरेक्टली उनको खोल देते हैं। तो पर इसके लिए एज यू सेड, आपने जैसा कहा कि एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल का होना ज़रूरी है, जिसमें कि सीटी स्कैन, सीटी एंजियोग्राफी की फैसिलिटी, एमआरआई ब्रेन और एक कैथ लैब का होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम उसका अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। और एक जो गोल्डन पीरियड होता है, हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। गोल्डन पीरियड अराउंड 4 से 4.5 घंटे के करीब का होता है। उसमें अगर मरीज पहुंचता है तो उसको लकवे से कम नुकसान होता है। पहले हम देखते थे कि हार्ट की एंजियोग्राफी होती है, हार्ट में एंजियोग्राफी के साथ ट्रीटमेंट होते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि अब ब्रेन में भी ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं जिसके साथ हम ब्रेन में भी वैसे पहुंच सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको मेंशन किया, ये जो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी है या कॉइलिंग जिसके बारे में, जिसको मैं एंडोवेस्कुलर न्यूरोसर्जरी कह रहा हूँ, ये वही टेक्निक है। जैसे ही कैथ लैब में ऑपरेशन होते थे हार्ट के होते हैं, उसी तरह न्यूरोसर्जरी के भी ऑपरेशन जो हैं अब कैथ लैब में होने लगे हैं। जो नसों का ऑपरेशन है, जिसमें गुब्बारा बन गया, गुब्बारा फट गया, उसको सील करना है, नसों का गुच्छा बन गया, उसको सील करना है, ये सब कैथ लैब में पॉसिबल है। एंड सिमिलरली मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, जिसमें से हम क्लॉट जो है ब्लड वेसल के अंदर से निकाल करके वहाँ ब्लड फ्लो रिस्टोर कर देते हैं, वो जो है वो पॉसिबल कैथ लैब में ही है। डॉक्टर साहब, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डाटा। आज हम आपसे मिले हैं और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे दर्शकों जैसे डॉक्टर साहब ने 12 साल की बच्ची को नाक के रास्ते में जाकर, क्योंकि ये ऐसे सर्जन हैं जिन्होंने ज़िंदगी लगाई हुई है, मेहनत की है, और ये एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसमें हार्ट की और सभी जो साइड की जो तकलीफ़ें आ सकती हैं न्यूरो वाले को, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बढ़िया ओटीज़ हैं यहाँ पर। डॉक्टर साहब, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद।